My dear students, Assalamu alaikum. This is the remaining part of Unit 13. This is the last unit of your book, English book. And we are going to do the exercise of Unit 13, Faithfulness. Let's start. Write down verbs from the prefix n and use these words in sentences. You are given some verbs. You will add the prefix en, and by adding n, the word changes slightly in its meaning, and then you will make the sentences from these new words. I have given the meanings of these words after adding prefixes with them, and I've written the meanings in Urdu so that you understand and comprehend these words properly and make sentences on your own. One is enable, second is encourage, third is enrich. Enrich is किसी चीज़ को rich बनाना. Usually it is used for land, किसी land को fertile करना. Engulf, इसका मतलब निगलना भी होता है और घेर लेना किसी चीज़ को. Enroll is किसी लिस्ट में शामिल करना. जैसे किसी कोई लिस्ट बन रही होती है कैंडिडेट्स की, उसमें किसी को एनरोल करना. एनलाइटन मीन्स रोशन करना, ब्राइट करना. और इनैक्ट मीन नाफिज करना या लागू करना. Give meanings of following phrasal verbs and use these phrasal verbs in sentences. Again, you are given some phrasal verbs. I have given the meanings of these phrasal verbs and you will make sentences on your own. Do you know why we always ask you people to make your own sentences? Because in this way, you come to know how a word is used in English language. This is your creativity. Take off. It means जैसे एरोप्लेन करता है, टेक ऑफ करता है, उड़ता है. So it means depart hastily. जल्दी से चले जाना. Fall through. It means to fail or stop suddenly. नाकाम हो जाना. To hand over. It means to give to someone. किसी के हवाले कर देना. Fourth is come about. Come about का मतलब है हो जाना. Happen or take place. Write down. It means put something in writing. लिख लेना किसी चीज़ को. And bring in means produce or get. Bring in के बहुत सारे meanings हैं, but जो mostly use होते हैं generally, that is produce or get or gain. Use the following in sentences as verbs and nouns. Again, sentences, but I have done these sentences for you. A word is given. These words are used as verbs and as nouns as well. ये वर्ड्स वर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं और नाउन के तौर पे भी. आपने इनको एक दफ़ा नाउन एज अ नाउन यूज़ करना है एंड फिर एज अ वर्ब भी यूज़ करना है. एंड व्हेन ऑफ कोर्स ये तभी पता चलेगा व्हेन यू यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस कि आपको ये सही सेंस आई है कि ये नाउन में कैसे यूज़ होगा और वर्ब में कैसे. लेट्स सी हाउ. द वर्ड इज़ फॉल. Okay, fall means गिरना. गिरना is a verb. लेकिन किसी चीज़ का ज़वाल, that is also fall. ज़वाल is noun because that is a thing, abstract noun. And fall as गिरना is verb. Noun sentence is the fall of Mughal dynasty was tragic. And verb sentence is the rock was falling from the mountain top. The word is lead. Lead means lead करना, आगे आगे होना. That is a verb. But किसी को किसी पे lead होना, हम कहते हैं पाकिस्तान को इतने की lead मिली. That lead is a noun, a thing. So noun sentence is Pakistan team had the lead of
54 runs. And verb sentences, he has the ability to lead the movement. Here, lead is used as a verb. The word is control. कंट्रोल करना और किसी का खुद पे कंट्रोल होना, दैट कंट्रोल होना इज अ नाउन और कंट्रोल करना इज अ वर्ब. वर्ड एक ही है बट दोनों पर्पजेस के लिए यूज़ हो सकता है. नाउन सेंटेंस में होगा शी हैज़ नो कंट्रोल ऑन हर एंगर, एंड वर्ब में होगा यू शुड कंट्रोल योर एंगर. दोनों जगह एंगर के कंट्रोल की बात है. ओके, ग्रांट. ग्रांट एक होती है कुछ चीज़ जो है वो काइंडली देना, दैट इज़ ग्रांट. और एक होती है वो ग्रांट जो पैसों वाली होती है. तो जो पैसों वाली होती है दैट इज़ अ नाउन, और वो जो कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस होता है दैट इज़ अ वर्ब. A noun sentence is please grant me character certificate, and as verb it is used like the government issued the grant for dam. The word is stand. Stand खड़ा होना is a verb. But जैसे बस स्टैंड होते हैं, साइकिल स्टैंड होते हैं, वो ज़ाहिर है वो वाले स्टैंड होते हैं, या कोई भी स्टैंड हो गया, सेल्फी स्टैंड हो गया. As a noun sentence it is he was standing in heavy rain. As a noun sentence ये है the condition of bus stand is very poor. Here stand is a thing, एक चीज़ है. And as a verb sentence it is he was standing in heavy rain. यहाँ पे ये एक verb है, एक काम है कि वो खड़ा हुआ है heavy rain में. The word is mind. माइंड एक दिमाग है, और एक माइंड होता है कि माइंड करना, आप माइंड ना कीजिएगा, तो वो माइंड कीजिए वाला इज़ अ वर्ब, काम है. और वो जो हमारा दिमाग है दैट इज़ अ थिंग. एज अ नाउन सेंटेंस इट इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया केम टू माई माइंड, एंड एज अ वर्ब सेंटेंस इट इज़ इफ़ यू डोंट माइंड आई नीड योर टाइम. वर्ड इज़ डिमांड. डिमांड करना, हम किसी से कुछ डिमांड करते हैं तो वर्ब है ना, और हमारी कोई डिमांड है, जब वो हमारी कोई डिमांड है तो वो एक चीज़ बन जाती है, दैट इज़ अ नाउन. एज अ नाउन इट इज़ हिज डिमांड वॉज क्वाइट अनफेयर. बिल्कुल ठीक नहीं थी उसकी डिमांड. एंड एज अ वर्ब इट इज़ ही डिमांडेड हिज शेयर इन प्रॉपर्टी. उसने प्रॉपर्टी में अपना शेयर डिमांड कर दिया. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन a word as a noun and a word as a verb. Next is answer the following questions. The chapter was really easy, so answering these questions is also easy. Question 1. What case did the young man bring to Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu? Answer is the young man brought the case of the murder of their father to Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu. Question 2. Why did the old man hurl a stone at the camel? Answer. The old man hurled the stone at the camel because it nipped a few leaves of the hanging branch of his tree. उसके ऑर्चर्ड की किसी ट्री से उसने कुछ लीव्स उतार लिए थे, that is why he hurled a stone at the camel. Question 3. Why did the villager ask Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu to delay the execution? Answer is he asked for the delay because he wanted to hand over the gold left by his father to a trustee. किसी अमीन अमानतदार के हवाले करना चाहता था. Question 4. On what condition was the criminal allowed to leave? किस शर्त पे उस क्रिमिनल को जाने नहीं दिया? Answer is he was allowed to leave on the condition of providing surety. ज़मानत दे और फिर जाए. Question 5. Why were sahabas worried? सहाबा क्यों परेशान थे? Answer is Sahabas were worried about the security and safety of Hazrat Abu Zar Ghaffari Raziyallahu Ta'ala Anhu because the murderer had not reached at the fixed time. Question 6. Why did the accusers forgive the villager? Answer is the accusers forgave the villager because they were impressed by his divine act of faithfulness. They felt that he was a noble soul. उनको पता चल गया कि बंदा अंदर से अच्छा है,
गलती किसी से भी हो जाती है। उसने कत्ल करने के इरादे से वो स्टोन नहीं मारा था, लेकिन वो इतना फेथफुल और इतना ऑनेस्ट था, तो उसकी ऑनेस्टी ने उनको इम्प्रेस किया और इस तरह उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और ब्लड मनी भी नहीं ली। The third conditional sentences. In previous lesson, we studied about all the conditional sentences, the zero conditional, the first conditional, the second conditional, and in this lesson, the exercise regarding the third conditional sentences is given to you. Let's see what are these third conditional sentences. The third conditional sentences refer to the past. एक तो ये कि इसमें जो इवेंट या जो इंसिडेंट हुआ होता है या जो बात हुई होती है वो पास्ट की बात होती है। वी स्पेकुलेट अबाउट सिचुएशंस। स्पेकुलेट मीन्स हम इज्यूम करते हैं, हम समझते हैं या हम ख्याल करते हैं कि ऐसा हुआ होगा पास्ट में, दैट हैपेंड और डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। और ये भी पता नहीं होता कि वो पास्ट में हुआ भी था या नहीं, मतलब हम उसके बारे में श्योर नहीं होते। वी डोंट हैव एनी एविडेंस अबाउट दैट इवेंट और अबाउट दैट स्पेसिफिक थिंग। एग्जाम्पल इज, इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न्ड, अगर वो वापस ना आता, आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम। दिस सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम दिस टेक्स्ट फेथफुलनेस। अगर वो वापस ना आता तो मैं खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता। नाउ ये एक एजम्पशन है, ये एक स्पेकुलेशन है कि अगर ऐसा हुआ होता, वो हुआ तो नहीं था। सो दिस थिंग इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। पास्ट में किसी बात के बारे में हम तसव्वुर करें कि अगर ऐसा होता तो पता नहीं क्या होता या ये हो जाता। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड थर्ड कंडीशनल। और उसमें उसके जो टू पार्ट्स हैं, उसमें जो कंडीशनल पार्ट होगा यानी इफ़ पार्ट होगा, इफ़ क्लॉज होगी, उसमें हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जो उसकी मेन क्लॉज होगी यानी जो रिजल्ट क्लॉज होगी, उसमें वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या could have third form of the verb, या might have third form of the verb। यानी have and third form of the verb तो होगी ही, और इनमें ऑप्शन होता है would भी हो सकते हैं according to the situation। We can also use could and also might। ये situation पे डिपेंड करता है। So this is third conditional sentence। Now this is the exercise of third conditional sentences. Put the correct verbs to make third conditional sentences। अब हमें ये देखना है कि if clause कौन सी है। ऑफ कोर्स उसके साथ if लगा हुआ होगा, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। एंड what is the result clause। और हम ये भी देखेंगे कि मेन क्लॉज जहाँ पे उस if का रिजल्ट निकल रहा है, उस कंडीशन का रिजल्ट है, what is the rule of that clause, जो कि हमने भी पढ़ा है कि would have plus third form of the verb यूज़ होगी। If you dash not be late, we dash not miss the bus। Now if clause इसके साथ had plus third form of the verb, had not, as there is not in brackets, so not यहाँ पे हमें essentially लगाना है। had not been, this be is given here, हम इसको ऑफ कोर्स हम हैड के साथ वर या इज़ या एम या आर तो नहीं ऐड कर सकते। बीन, बी की जो बीन वाली फॉर्म है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हैड नॉट बीन लेट, अगर तुम लेट ना होते, वी वुड नॉट हैव मिस्ड द बस। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म थी ना, तो जहाँ नॉट वो मेंशन करेंगे, हमें नॉट तो साथ ऑफ कोर्स ऐड करना है। वुड नॉट have missed। and keep this thing in mind कि ये जो not है ये would और have के दरमियान में, in between would and have, हम इसको put करेंगे। 2 if we dash earlier, if, so यहाँ पे had plus third form of the word, had arrived। if we had arrived earlier, अगर हम जल्दी पहुँच जाते, we would have seen, would have plus third form of the word, our aunt। तो हम अपनी aunt को देख लेते या उनसे मिल लेते। 3 if she dash to art school, third form of the verb with had।
इफ़ वाले पार्ट में, कंडीशनल पार्ट में, इफ़ शी हैड गॉन टू आर्ट स्कूल, अगर वो आर्ट स्कूल गई होती, शी वुड हैव बिकम अ पेंटर, तो वो पेंटर बन गई होती. नाउ दिस इज अ स्पेकुलेशन. अगर होता तो ही उसका ये रिजल्ट निकलता, एंड विच रियली डिड नॉट हैपन. 4. इफ़ आई डैश बॉर्न इन अ डिफरेंट कंट्री, अगर मैं किसी मुख्तलिफ मुल्क में पैदा हुई होती तो क्या हो जाता. आई डैश टू स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, तो एक डिफरेंट ज़बान ही सीख लेती. नाउ दिस इज स्पेकुलेशन. एंड इन इफ़ क्लॉज, ये जो इफ़ वाला कंडीशनल पार्ट है, इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड. नाउ हैड तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, बट बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन. बिन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी वर्ड. बी जो है 8 डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ होता है. इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, like this, B-E-E-N, बीन, एंड B-E-I-N-G, बीइंग. ये सब बी की ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो अकॉर्डिंगली ये जो B-E-E-N, बीन है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ बी है. सो हम हैड के साथ बिन ऐड कर रहे हैं. बॉर्न इन अ डिफरेंट कंट्री, आई वुड हैव लर्नड टू स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. 5. They dash late if they dash a taxi. Now if clause is the second part of the sentence and main clause is at the first part of the sentence. So हमें main clause में, result clause में क्या करना है? would have plus third form of the word. This is they would have been late. वो late हो जाते. if अगर क्या होता? they had plus third form, had not taken a taxi. अगर उन्होंने एक टैक्सी ना ली होती तो वो लेट हो जाते. सो इफ़ के साथ हमने had प्लस थर्ड फॉर्म, एंड ऑफ कोर्स जहाँ नॉट मेंशन होगा तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यानी had के साथ नॉट अटैच करना है. 6. वी डैश कम, हम आ जाते. दिस इज़ द रिजल्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, मेन क्लॉज. So main clause में would have plus third form of the word. We would have come if we had plus third form of the word. Had been invited. Yes. We would have come. हम आ जाते अगर हमें invite किया जाता. So if conditional part के साथ have been third form of the word. Now इन्होंने बी और इनवाइटेड दोनों मेंशन किए हैं, सो हमें बी की थर्ड फॉर्म लगानी है यहाँ पे, और इनवाइटेड इज़ ऑफ कोर्स ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है. नाउ कम टू द कंपाउंड सेंटेंसेस. व्हाट इज अ कंपाउंड सेंटेंस? अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ 2 independent clauses joined together by a comma and a coordinating conjunction. Do you remember what is a clause? Clause is a group of words which is not a complete sentence, but it has a proper subject and a well-defined verb. ये clause होती है. Now, in a sentence, there may be many clauses. In some sentences, there are 2 clauses. One is main clause, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो क्लॉज अकेली भी अपना मीनिंग फुल दे रही होती है. एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज. जो मेन क्लॉज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है यानी जो डिपेंड कर रही होती है, जो इनकम्प्लीट होती है अपनी सेंस में, वो सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है. यू नो सबॉर्डिनेट हम कहते हैं, जो बॉस होता है उसके नीचे काम करने वाले को सबॉर्डिनेट कहते हैं, मातहत. सो वो मातहत होती है अपनी मेन क्लॉज की. वो डिपेंडेंट होती है यानी वो मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रही होती है. जब तक हम मेन क्लॉज उसके साथ नहीं लगाएंगे वो अपना मीनिंग पूरा नहीं देगी. बट कंपाउंड सेंटेंसेस में ये होता है कि क्लॉजेस 2 होती हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं होती. हम उनके दरमियान में एक कंजंक्शन डाल के
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब है जो दोनों को मिला दे, वो दोनों को ज्वाइन कर देता है वो कंजंक्शन, और अगर उस कंजंक्शन को हम हटा दें तो वो दोनों क्लॉजेस अपनी अपनी जगह पे मुकम्मल आज़ाद हैं, यानी इंडिपेंडेंट हैं। और वो कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं? द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इसको हम अपनी आसानी के लिए फैन बॉयज़ कहते हैं। इस फैन बॉयज़ का नाम याद रखने से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें जो हैं ये एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होती हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही वॉज टायर्ड फॉर ही वेंट टू बेड अर्ली। वो थका हुआ था इसीलिए जल्दी सो गया। नाउ इस फॉर को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, ही वेंट टू बेड अर्ली, वो जल्दी सो गया। ये दोनों कंप्लीट सेंस दे रही हैं अपनी अपनी जगह पे। हमने उनको फॉर लगा के ज्वाइन कर दिया है और ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कुक्ड डिनर एंड ही वॉश्ड द डिशेस। अब आई कुक्ड डिनर एक कंप्लीट बात है, ही वॉश्ड द डिशेस एक कंप्लीट बात है। उसको मिलाना है तो हम एक बीच में एक कोऑर्डिनेट करने वाला कंजंक्शन लगा देंगे जो कि एंड है। और ये हमें सेंटेंसेस के सेंस देख के खुद पता करना है कि यहाँ पे कौन सा वाला कंजंक्शन हमें यूज़ करना है। जेन हैज़ अ रेड कार बट जिल हैज़ अ ब्लू कार। जेन के पास रेड कार है, जिल के पास ब्लू कार है। हम बट लगा के दोनों को, बट को यहाँ पे प्लेस करके दोनों को एक सेंटेंस बना देंगे तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। सो दो मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने वाली चीज़ जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जब हम वो ऐड कर देते हैं तो वो पूरा सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। Now this is your exercise regarding compound sentences. Combine the following sets of simple sentences to make compound sentences. You are given two sentences and you will add one coordinating conjunction in each sentence and make it a compound sentence. 1. It rained for 3 days. 3 दिन बारिश होती रही. The streets in my neighborhood were flooded. मेरे नेबरहुड में गलियों में सैलाब आ गया. These are two independent sentences. हमने इनको ज्वाइन करना है, एक बनाना है, जिससे ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा. So what coordinating conjunction is proper to fit here? ये एक रिज़ल्ट है ना, एक काम हुआ, रेन हुई तो गलियां भर गई पानी से, तो हम जब ऐसी कोई बात करते हैं तो हम कहते हैं so. Now I haven't written this sentence again, but जब आप so ऐड करेंगे तो ये फुल सेंटेंस इस तरह लिखा जाएगा. It rained for 3 days, so the streets in my neighborhood were flooded. एक सेंटेंस बन जाएगा. 2. Kareem completed his homework. करीम ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया. He put it in his binder. उसने इसको अपने बाइंडर में डाल दिया. तो यहाँ पे क्या चीज़ है जो इन दोनों को ज्वाइन करेगी? एंड. होमवर्क कंप्लीट किया और बाइंडर में डाल लिया. 3. हारिस mowed the lawn. हारिस ने लॉन की घास काटी. He earned 100 rupees. और उसने 100 रुपीज़ अर्न कर लिए. नीलम डजंट लाइक सी फूड. नीलम को सी फूड पसंद नहीं. शी डजंट लाइक कैबेज. और उसको कैबेज भी पसंद नहीं. सो और है लिहाजा एंड शी डजंट लाइक कैबेज. जब आप इसको एक कंपाउंड सेंटेंस में लिखेंगे तो आप ये एक सेंटेंस के बाद वाला फुल स्टॉप रिमूव करेंगे, कंजंक्शन को ऐड करेंगे और नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करने के लिए जो कैपिटल लेटर है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसको भी स्मॉल कर देंगे. तो ये एक फुल कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा. 5. माई पेंसिल वॉज ब्रोकन. मेरी पेंसिल टूट गई. आई बोरेड वन फ्रॉम बुशरा. तो मैंने बुशरा से एक और ले ली. सो ये रिज़ल्ट है. रिज़ल्ट इज़ विल सो.
6. I like apples. I like pears more. मुझे एप्पल्स पसंद हैं लेकिन मुझे pears ज़्यादा पसंद है. So this is a comparison and but is a proper coordinating conjunction here. 7. 8 people got into the elevator. 8 लोग एलिवेटर पे चले गए. It was crowded. ये भर गया. 3 people got off. 3 लोगों को उतरना पड़ा. 8 people got into the elevator. ये एक चीज़ हुई ना. So इसका रिजल्ट क्या निकला? So ये क्राउडेड हो गया. 3 people को got off होना पड़ा. 8. Sarah gathered the pictures. सारा ने पिक्चर्स इकट्ठी की. She could arrange them in a special album for her family. ताकि वो अपनी फैमिली के लिए एक स्पेशल एल्बम बनाए. This is a result and result comes with so she could arrange them in a special album for her family. Now there are complex sentences. अभी हमने कंपाउंड पढ़े. कॉम्प्लेक्स उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. इसमें क्या होता है? A complex sentence is made up of a main clause. कंपाउंड सेंटेंस में क्या था कि जो क्लॉजेज होंगी वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगी, अपने अपने तौर पे आज़ाद होंगी. इसमें क्या है? एक क्लॉज तो मेन होगी इसमें जो कि इंडिपेंडेंट होगी एंड वन और मोर, एक और एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होंगी. सबऑर्डिनेटिंग का मतलब जो मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रही होंगी और मेन क्लॉज के बगैर उनका अपना जो मीनिंग है या सेंस है वो इनकम्प्लीट होगी. A subordinating clauses joined together by a subordinating conjunction. वहाँ पे coordinating conjunction थे जो coordinate कर रहे थे. coordinate means कि चीज़ों को मिलाना, जोड़ना. और subordinating conjunction वो होते हैं जो किसी dependent चीज़ को किसी independent चीज़ के साथ मिलाते हैं. काम दोनों का मिलाना ही होता है क्योंकि conjunction का काम हमेशा मिलाना होता है. बट subordinating conjunction को देख के ही पता चल जाता है कि ये सबऑर्डिनेट है. इसके ये अकेला जिस क्लॉज के साथ लगा हुआ है वो इनकम्प्लीट सेंस दे रही है वो क्लॉज. और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? उसमें तो फैन बॉयज़ था ना. इसमें आफ्टर, व्हेन, अनटिल, सून, बिफोर, वंस, व्हाइल, एज, इफ, वेदर और नॉट, प्रोवाइडेड, इन केस, बिकॉज, एज, सिंस, इन ऑर्डर दैट, नाउ, दो, ऑल्दो, व्हाइल, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. एग्जाम्पल, यू मे गो होम एज सून एज योर वर्क इज डन. नाउ यू मे गो होम एक मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है, आप घर जा सकते हैं. बट ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है, एज सून एज योर वर्क इज डन, जैसे ही आपका काम ख़त्म हो. अगर हम सिर्फ इतनी बात करें जैसे ही आपका काम ख़त्म हो, then one would ask कि जैसे ही आपका काम ख़त्म हो तो क्या करें? बात मुकम्मल नहीं हुई, सेंस कंप्लीट नहीं हुई, हमें कंप्लीट थॉट नहीं पहुंचा कि क्या कहना चाह रहा है अगला बंदा. सो ये इंडिपेंडेंट है, सॉरी ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंड कर रही है यू में गो होम वाली क्लॉज पे. वो आज़ाद क्लॉज है, ये उसकी सबऑर्डिनेट है, उसकी ग़ुलाम है ये क्लॉज. सो जब एक मेन क्लॉज के साथ एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस मिल जाएं और उन दोनों क्लॉजेस को या तीनों क्लॉजेस को मिलाने वाले जो वर्ड्स हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा. Now this is your exercise of complex sentences. Combine the following sets of simple sentences to make complex sentences. You are given 2 simple sentences and you will join these 2 sentences and make one by adding a subordinate conjunction between the two. Subordinate conjunction add करने से जिस clause के साथ या जिस sentence के साथ ये conjunction add होगा, place होगा, वो subordinate clause हो जाएगी और दूसरी clause जो है वो main clause हो जाएगी, because वो फिर एक sentence हो जाएगा. Let's see how. 1. I did not go to the meeting. I was sick. मैं मीटिंग में नहीं गया. क्यों? Because I was sick.
क्योंकि मैं बीमार था. And when we will write it in a whole sentence, we will say, I did not go to the meeting because I was sick. अब ये because I was sick एक subordinate या dependent clause है, depend कर रही है main clause पे, and the main clause is I did not go to the meeting. 2. You may be wrong, I cannot say. आप गलत हो सकते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकती. So इन 2 sentences में हम एक subordinate conjunction add करेंगे and that is but. आप गलत हो सकते हैं लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती. And when we'll write it in a whole sentence, we'll say, you may be wrong but I cannot say. And but I cannot say is a subordinate and dependent clause, and you may be wrong is main clause. 3. He works hard day and night. He did not wish to fail. वो दिन रात मेहनत करता है. क्यों? Because he did not wish to fail. क्योंकि वो नाकाम नहीं होना चाहता. And now I'm not going to write it in a whole sentence. You know, ये जो 1 और 2 में full sentence लिखा है, you know how you write it and do it by yourself. 4. The examination ended. The students went home. Examination ख़त्म हो गए. कब? When the students went home. जब students घरों को चले गए. 5. Their progress was slow. उनकी progress slow थी. They were tired. क्यों slow थी? Since they were tired. Since is used in the sense of because or as. 6. You should overlook his fault. तुम्हें उसकी गलती से नज़रअंदाज करना चाहिए. It would be an act of generosity on your part. और ये एक generosity का act होगा. We found him in a house. He had formerly lived in that house. हमने उसको एक घर में ढूंढ लिया. क्यों ढूंढ लिया? As he had formerly lived in that house. क्योंकि as is used in the sense of because, कि वो उस घर में पहले से रह रहा था. 8. The boy gave an explanation of his misconduct. जो misbehave किया लड़के ने, उसने एक explanation दी. The explanation was not accepted by the headmaster. So यहाँ आएगा but headmaster ने वो accept नहीं की. Now I tell you how you can write it in a whole sentence. Look at this sentence number 5. Their progress was slow. Full stop को remove करें. Since add करें. They were tired. और they का T small हो जाएगा because it is a continuous sentence. और tired के बाद full stop. So ये एक पूरा complex sentence बन गया. Use of comma in 2 clauses. This is really interesting topic. Comma का use 2 clauses में हम कैसे करते हैं? When there are 2 clauses, हमें उनमें कहीं ना कहीं एक comma place करना होता है, शो करने के लिए कि ये 2 parts हैं. एक sentence है, but there are 2 or more than 2 parts of one sentence. When a dependent clause precedes the independent clause, separate the clauses with a comma. They are saying कि जब dependent clause पहले आ जाए, यानी जो depend करने वाली चीज़ है वो पहले आ जाए, और independent बाद में आए, यानी main clause बाद में आए, तो आपको एक comma से उसे join करना होगा, जो दोनों को मिलाएगा, जहाँ से पता चलेगा कि 2 पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के. एज वी हैव रेड अर्लियर कि जहाँ पे मेन क्लॉज पहले थी और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में थी, सबॉर्डिनेट क्लॉज बाद में थी, वहाँ पे हमें कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ी. बट यहाँ पे जहाँ डिपेंडेंट क्लॉज पहले है, यानी सबॉर्डिनेट क्लॉज पहले है और मेन क्लॉज बाद में है, वहाँ पे हम मेन क्लॉज शुरू करने से पहले एक कॉमा लगाएंगे जहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज एंड हो रही होगी. एग्जाम्पल है, बिफोर वी कैन मेक अ डिसीजन. इससे पहले कि हम एक डिसीजन लेते. अब ये बात इनकम्प्लीट है,
ये डिपेंड कर रही है बात कि इसको कुछ और चाहिए जिस पे ये डिपेंड करे, और वो मेन चीज़ क्या है कि वी नीड टू रिव्यू ऑल द प्रायर रिकॉर्ड्स। हमें पिछले सारे रिकॉर्ड को चेक करने की ज़रूरत है। अब ये बात अपने में एक कंप्लीट बात है, वी नीड टू रिव्यू ऑल द प्रायर रिकॉर्ड्स, बट इससे पहले हमने एक और क्लॉज लगाई हुई है जो इस क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो जहाँ पे डिसीजन के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड हो रही है वहाँ पे हम एक कॉमा ऐड करेंगे, प्लेस करेंगे, जहाँ से ये दो क्लॉजेस अलग अलग हमें फील होंगी। Read the following sentences, circle subordinating conjunctions, underline independent clauses and put commas after dependent clauses. Now, हमें क्या करना है, इन sentences को read करें, encircle the subordinating conjunctions, the words which are working as subordinating conjunction and the words which are attached to the clause and making that specific clause are dependent clause. यानी जिस clause के साथ ये लग रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, वो एक dependent clause बन रही है, वो incomplete हो जाती है इन subordinating conjunctions की वजह से, इसलिए कि ये subordinating conjunctions उस पूरी clause को subordinate कर देते हैं, उसको depend करना पड़ता है main clause के ऊपर। And अंडरलाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, और इनमें जो मेन यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है उनको अंडरलाइन करना है एंड पुट कॉमास आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉजेज, और जहाँ डिपेंडेंट क्लॉज ख़त्म हो रही है वहाँ पे हमें कॉमा पुट करना है, बिकॉज पूरा सेंटेंस ख़त्म होगा तो फुल स्टॉप आएगा। एग्जाम्पल, ऑल्दो आई हेट टी पार्टीज़, अगरचे मुझे टी पार्टी से नफरत है। आई वेंट टू प्लीज़ माई मदर, मैं अपनी मदर को खुश करने के लिए चली गई। Now, I went to please my mother is a complete sentence. So, it is main clause, independent clause. इसको underline किया। Although I hate tea parties, इसमें से अगर although को remove कर दें, I hate tea parties, तो I hate tea parties भी एक complete sentence है। But although साथ attach होने से, अगरचे मुझे tea parties से नफरत है, इस अगरचे की वजह से, although की वजह से ये इसको ज़रूरत है एक और क्लॉज की जिसके साथ मिलकर ये कंप्लीट सेंस दे सके। सो ये एक डिपेंडेंट सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है और ऑल दो की वजह से है, दैट्स वाई ऑल दो को एनसर्कल किया, इस क्लॉज के बाद पार्टीज़ के बाद कॉमा पुट किया और मेन क्लॉज को अंडरलाइन कर दिया। लेट्स डू द अदर सेंटेंसेस। 1. While I am attending school, जबकि मैं स्कूल भी जा रहा हूँ, आई कैन वर्क पार्ट टाइम सो दैट आई कैन सेव मनी, तो मैं पार्ट टाइम काम भी कर सकता हूँ ताकि कुछ मनी सेव कर लूँ। नाउ आई कैन वर्क पार्ट टाइम सो दैट आई कैन सेव मनी, कंप्लीट सेंटेंस है, इट इज़ मेन क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज वाइल वाली है, वाइल जबकि मैं स्कूल भी अटेंड कर रहा हूँ, ये वाइल एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो इस पूरी क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है। स्कूल के बाद ये क्लॉज एंड हो रही है, यहाँ पे कॉमा पुट किया, वाइल को एनसर्कल किया जो कि डिपेंडेंट क्लॉज का सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और मेन क्लॉज को हमने अंडरलाइन कर दिया। 2. So that I could go to college, my parents worked hard and saved money. ताकि मैं कॉलेज जा सकूँ, मेरे पेरेंट्स ने मेहनत की और मनी सेव की। Now my parents worked hard and saved money is a complete sentence. It's main clause. ये सेंटेंस का वो पार्ट है जो इंडिपेंडेंट है, सो इट इज़ मेन क्लॉज। और जो दूसरी क्लॉज है, सो दैट आई कुड गो टू कॉलेज, ताकि मैं कॉलेज जा सकूँ, दिस सो इज़ मेकिंग दिस क्लॉज डिपेंडेंट। इस सो की वजह से हमें एक और क्लॉज की ज़रूरत पड़ी है जिसके साथ अटैच करके हम इसको कंप्लीट सेंस दे सकें, दैट्स वाई सो इज़ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कॉलेज के बाद ये क्लॉज एंड हो रही है, यहाँ पे कॉमा, एंड मेन क्लॉज को हम अंडरलाइन कर रहे हैं। 3. इफ़ द मोटर डज नॉट स्टार्ट, अगर मोटर स्टार्ट नहीं होती, वी विल हैव टू फाइंड अ मैकेनिक एज सुन एज पॉसिबल, हमें एक मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा जितनी जल्दी मुमकिन हो। सो दिस वी विल हैव टू फाइंड अ मैकेनिक एज सुन एज पॉसिबल, ये कंप्लीट सेंटेंस है। सो ये मेन क्लॉज है क्योंकि ये अपनी सेंस कंप्लीट दे रही है, बट
इफ़ द मोटर डज नॉट स्टार्ट, अगर मोटर स्टार्ट नहीं होती, बात इनकम्प्लीट है और ये इफ़ की वजह से है. सो इफ़ इज़ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. स्टार्ट के बाद ये डिपेंडेंट क्लॉज एंड हो रही है, कॉमा पुट किया और मेन क्लॉज को हमने अंडरलाइन कर दिया. गॉट इट? 4. Although the blue jacket was on sale, अगरचे वो ब्लू जैकेट सेल पे लगी हुई थी, I did not buy it, मैंने उसे नहीं ख़रीदा. I did not buy it, मैंने उसे नहीं ख़रीदा is main clause, क्योंकि इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है. बट although एक ऐसा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कि इसकी वजह से इसकी पूरी क्लॉज को किसी और मेन क्लॉज की ज़रूरत है. सो ये डिपेंडेंट क्लॉज है और जो वर्ड है although दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सेल के बाद डिपेंडेंट क्लॉज एंड हो रही है, कॉमा और मेन क्लॉज को अंडरलाइन. 5. व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल बेल बजी, द चिल्ड्रन लेफ्ट द क्लासरूम, बच्चों ने क्लासरूम छोड़ दिया. The children left the classroom is main clause, independent. When the school bell rang is dependent clause, और ये when वाले वर्ड की वजह से डिपेंड कर रही है. ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ये वो कंजंक्शन है जो इस पूरी क्लॉज को सबऑर्डिनेट कर देता है मेन क्लॉज पे. रैंक के बाद कॉमा, बिकॉज यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज एंड हो रही है और मेन क्लॉज को हम अंडरलाइन करेंगे. 6. Since he had no luggage with him, चूँकि उसके पास कोई सामान नहीं था, it seemed odd for him to be on the road. ये odd लग रहा था उसको रोड पे खड़े होना. So it seemed odd for him to be on the road. ये मेन क्लॉज है जिसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं. Since is the subordinating conjunction जो he had no luggage with him के साथ लग के उसको सबऑर्डिनेट कर रहा है. यहाँ पे क्लॉज एंड हो रही है, डिपेंडेंट क्लॉज एंड हो रही है और मेन क्लॉज को हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं. 7. Even after the fire was out, there was a great deal of clean up to do. आग बुझने के बाद भी बहुत सारा क्लीन अप का काम था. वहाँ पे क्लीन अप का बहुत सारा काम था. So there was a great deal of cleanup to do. एक मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है. बट इवन आफ्टर के वर्ड की वजह से ये पूरी क्लॉज फायर वॉज आउट तक एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई है और आउट के बाद ये क्लॉज एंड हो रही है, कॉमा पुट किया, इवन आफ्टर को अनसर्कल किया और मेन क्लॉज को हमने अंडरलाइन किया. आई होप हर सेंटेंस को डिटेल से एक्सप्लेन किया है. You have got a good idea of these clauses and commas. This is really interesting and enjoyable task. Interrupted quotations. Interrupted क्या होता है? हम कहते हैं ना इंटरप्शन आई है किसी चीज़ में, यानी किसी ने इंटरप्ट किया है, बीच में मुदाखलत की है. UPS uninterrupted power supply, यानी वो पावर सप्लाई जिसमें कोई इंटरप्शन ना हो, कोई बीच में ना आए. इंटरप्शन का मतलब होता है बीच में कूद पड़ना, दरमियान में आ जाना. नाउ कोटेशन वो बात होती है जो किसी ने कही भी होती है और कोटेशंस को हम यूजुअली कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. बाज़ दफ़ा कोटेशन को बीच में इंटरप्ट करना पड़ता है, बीच में बताना पड़ता है कि बात किसने की थी. कोटेशन बीच में इंटरप्ट हो जाती है तो जो बात आधी कही हुई है वो एक तरफ रह जाती है और आधी एक तरफ. तो वो जो कही हुई बातें हैं उनको हमने इन्वर्टेड कॉमास में ही रखना होता है और जहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो किसने की थी या कही थी, वो हम बीच में ऐसे ही लिखेंगे और बाद में दोबारा इन्वर्टेड कॉमास लगा के बात को कंटिन्यू करेंगे. इफ़ द कोटेशन ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस इज़ इंटरप्टेड इन द मिडल एंड देन कंटिन्यूज आफ्टर द इंटरप्शन, इंटरप्ट होने के बाद फिर भी कंटिन्यू कर रही है बात, डू नॉट कैपिटलाइज द सेकेंड पार्ट ऑफ द कोटेशन. तो कोटेशन को जब हम दोबारा से इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे कंटिन्यू करने के लिए तो वहाँ पे पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा, इसलिए कि वो कंटिन्यूड फॉर्म में जा रहे हैं. यूज़ कॉमास टू सेट ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स. वो जो एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं ना, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको कॉमास से अलग करें. फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंग, सुहेल सेड, इज़ माई फेवरेट टाइम ऑफ ईयर.
अब सुहेल ने एक बात की है कि स्प्रिंग इज़ माई फेवरेट टाइम ऑफ ईयर। अब ये पूरी बात हम इन्वर्टेड कॉमर्स में राइट अप करते हैं, बट स्प्रिंग सुहेल के वर्ड्स हैं। अब सुहेल सेड एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं, यानी हम एक्सप्लेन करें कि सुहेल ने कही है ये बात। हमने सुहेल सेड को स्प्रिंग से अलग करने के लिए स्प्रिंग के इन्वर्टेड कॉमर्स बंद किए, क्लोज किए, स्प्रिंग के बाद कॉमा दिया, सुहेल सेड लिखा, सेड के बाद फिर एक कॉमा दिया, यहाँ से एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स अलग हो गए। और फिर स्प्रिंग के बाद जो उसने बात की थी, यानी इज़ माई फेवरेट टाइम ऑफ ईयर, दोबारा उसने वो बात की है। सो हमने इज़ का आई कैपिटल नहीं किया क्योंकि उसी बात की कंटिन्यूएशन है। फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए और बात ख़त्म होने पे कॉमर्स क्लोज कर दिए। इस तरह इंटरप्टेड कोटेशंस को लिखा जाता है। यस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। 1. Do you think it's okay? Asked Ali. If I wear this dress to school tomorrow. अली ने एक बात की है, पूछा है उसने, asked. Do you think it's okay? So इसका मतलब do से अली ने बात करनी शुरू की है। हम कॉमा स्टार्ट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को स्टार्ट करते हैं। It's okay तक अली ने बात की, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमास को क्लोज किया। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अली ने पूछा है, आस्क्ड अली। ठीक है, यहाँ से कॉमास लगा के आस्क्ड अली की पहले भी और बाद में भी हमने इस एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स को अलग किया। इफ़ का आई हमने स्मॉल रहने दिया क्योंकि ये पिछली बात को कंटिन्यू किया जा रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आया कहीं भी। किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है अगर वो सेंटेंस शुरू से शुरू हो रहा हो, यानी उससे पहले फुल स्टॉप हो। यहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं है, इसीलिए हमें इफ़ के आई को कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है। अली की बात दोबारा शुरू हो रही है इफ़ से, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास दोबारा स्टार्ट करेंगे और आई वेयर दिस ड्रेस टू स्कूल टुमारो, यहाँ उसका क्वेश्चन ख़त्म हो गया है और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर रहे हैं। सो ये है इंटरप्टेड कोटेशंस। आस्क्ड अली के वर्ड्स ने इंटरप्ट कर दिया पूरी बात को, तो जहाँ पे इंटरप्शन आई है कॉमा से उस बात को अलग करके बाकी कहीं भी बात को हम इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज कर देते हैं। 2. इफ़ यू हैड टू गेस, बात शुरू हो रही है इफ़ से, गेस तक आधी बात हुई, सेड मिस्टर तारिक, एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स, कॉमास से अलग किया, दोबारा बात शुरू हुई, हु वुड यू से इज़ माई फेवरेट ऑथर, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। 3. आई विल कॉल यू आफ्टर आई गेट होम, मैं घर जाकर तुम्हें कॉल करूँगी। बात कर रही है इरम, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए, होम तक उसने आधी बात कर ली, क्लोज हो गए। इरम सेड, एक्सप्लेन हुई है ये बात कि इरम ने कहा है, इरम ने दोबारा बात शुरू की, एंड वी कैन डिस्कस और साइंस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, और फिर हम अपने साइंस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। ये बात उसने टुगेदर पे ख़त्म कर दी। सो इरम सेड एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं जिसके पहले भी और बाद में भी सिंपल कॉमा है जो इसको अलग कर रहा है इन्वर्टेड वाली कोटेशन से। 4. विल बी ईटिंग सपर इन अबाउट एन आवर, हम 1 घंटे में खाना खाएंगे, ये बात की है मदर ने, और बात शुरू हो रही है विल से, कॉमा स्टार्ट, आवर तक मॉम की बात ख़त्म हो गई, आधी हुई बात, सो हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। मदर ने सेड मदर, ये एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं, यहाँ पे सिंपल कॉमा लगा के अलग किया। सो से मॉम दोबारा बात शुरू करेंगे, सो डोंट ईट एनी मोर स्नैक्स, कोई और स्नैक्स ना खाना। सो स्नैक्स पे मॉम की बात ख़त्म हो गई, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए। 5. वी नीड टू फर्टिलाइज द लॉन टुडे, आज लॉन को फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है। सेड फादर, फादर ने बात शुरू की है वी से और टुडे तक उन्होंने आधी बात कर ली, हमने यहाँ पे कॉमास क्लोज किए। और सेड फादर एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं, फादर की बात दोबारा कंटिन्यू हुई सिंस से, सिंस इट्स सपोज्ड टू रेन टुमारो, क्योंकि कल को रेन होने का चांस है। टुमारो तक फादर की बात ख़त्म हो गई तो हमने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए। दिस इज़ इंटरप्टेड कोटेशंस।
And this is your homework for this week from Grammar and Composition. You will learn the essay, a hockey match, and paragraph translation from Urdu into English. The paragraphs you will done in this week are 33, 34, and 37. It was a long exercise, but I hope I've explained it well. Listen to it carefully and improve your grammar sense. Thank you. Allah Hafiz.